Good evening, students. As we all know that today there is a paper of biology of term 1 class 12 CBSE. So today I will solve and provide the answer key of the set 057/1/4. Let's start with the first question without wasting the time. First of all, we solve section A. Okay? सबसे पहले हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे. सेक्शन ए. In section A, there are 24 questions. Okay? I must solve all the 24 questions, but out of 24 questions, only 20 are to be solved. 20 are to be solved. Okay? तो हम इसमें स्टार मार्क दे सकते हैं, है ना? Now the first question. Question number 1. First question is, we also see this enclosed within the integument of a typical anatrobus ovule is a diploid mass of cellular tissue. Integument एक typical anatropous ovule में एक diploid mass of cellular tissue है, उसको क्या कहते हैं? First option is megaspore mother cell, second option is nucellus, third option is synergids, and the fourth option is embryosac. The correct answer is option B, that is nucellus. Now see the second option. Researchers over the world are trying to transfer apomictic gene to hybrid varieties as hybrid character in the progeny. Researchers in the world over are trying to transfer apomictic gene to hybrid varieties. Why? To produce the same character again and again, because the character will not segregate in apomictic seed or fruit. Okay, so here there are 4 options. First, do not segregate. Second, segregate. Third, develop genetic variation, and fourth, will remain unexpressed. The correct option is option A, that is do not segregate. Do not segregate. Okay, now see question 3. In question 3, the aquatic plant having long and ribbon-like pollen grain is, first is Vallisneria, second option is Hydrilla, third is Ecornia, what we know also as a water hyacinth, हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं, and the fourth is Zostera. So the proper answer is option D, that is Zostera. Okay, that is a marine water plant. Question 4. Question 4 is, in a typical dicotyledonous embryo, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon, is called epicotyle, and below the level of cotyledon is called hypocotyle. So here 4 options are given: plumule, option A; B, coleoptile; C, epicotyle; and D, hypocotyle. So option C of question number 4, that is epicotyle, is the correct answer. Now question 5. To overcome incompatible pollination so as to get desired hybrid, a plant breeder must have the knowledge of. To overcome incompatible pollination, okay, plant breeder को क्या knowledge होना चाहिए? 4 options are there. Pollen nuclear interaction, इस तरह का कोई टॉपिक सीबीएसई में है ही नहीं. सेकेंड, pollen egg cell interaction. एक सेल तो जब pollen tube embryosac के अंदर में एंट्री करेगा तब का बात है. थर्ड, pollen pistil interaction, and fourth, pollen embryosac interaction. So the correct option is 1, that is option C, pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction.
Question number 6. Question number 6. Pollen grain retain viability for month in plants belonging to different families. Viability means the pollen grain is able to fuse with the egg or produce a pollen tube. This viability for a month remain active in 4 options are there: Solanaceae, Leguminaceae, Gramineae, Rosaceae and Pileaceae. There are 5 of family. The option is first 1, 2 and 5. Second 1, 2 and 4. Third 2, 4 and 5. And fourth 1, 3 and 4. The correct option is Solanaceae, Leguminaceae and Rosaceae. So the option correct is B. 1. Solanaceae. 2. Leguminaceae. And 3. Rosaceae. That is option 4. Rosaceae. Okay. Now question 7. Question 7 is, see this diagram. Okay. In this diagram, W, this is vast difference. And when we show this table, there is in W only one, that is option C, has a vast difference. So it is quite clear that option C is the correct answer. Option C is the correct answer. That is W, vast difference. X, seminal vesicle. Y, urethra. And Z, prostate gland. Okay, so this is the correct option. Now let's come to question 8. In question 8, during human embryonic development, the hut in the embryo is formed after, first option 15 days after pregnancy, 30 days after pregnancy, 45 days of pregnancy and 60 days of pregnancy. Answer is B, 30 days of pregnancy. Question 9. The uterus open into the vagina. The uterus open into the vagina through a narrow. And क्वेश्चन में ही क्लियर है, नैरो पर नैरो स्पेस क्या है वैगिनल यूटेरस के बीच? सर्विक्स. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 9 में ऑप्शन सी सर्विक्स करेक्ट आंसर है. एंड नाउ क्वेश्चन 10. इन क्वेश्चन 10 look this diagram. Okay, first is this option 1, that is देखो अगर बाहर से अंदर आए from outer to inner side we come, then first is epidermis, then endothelium, third is middle layer and fourth is tapetum, but here endothelium is the first, so option D is the correct. Option D, that is endothelium, then middle layer, three tapetum, four epidermis. Okay, this is the correct answer of question number 10. Now let's come to question number 11. Question number 11. Floral reward provided by insect pollinated flower to sustain animal visit.
जो इंटेमोफिलस फ्लावर होता है, जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होता है, वो एनिमल को विजिट जो करता है उसको एक रिवार्ड देता है, वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस, सेकेंड ऑप्शन इज नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, थर्ड ऑप्शन इज नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस, pollen grain and fragrance, sorry, and the fourth option is fragrance and bright color. Quite obvious, it is nectar and pollen grain. When in search of nectar, they sit on the flower, the pollen grains stick to their body. So question number 11, option B, nectar and pollen grain is the correct answer. Now question number 12. Question number 12, the cause of Klinefelter syndrome in human is. We all know that Klinefelter syndrome is 44 plus XXY. That means there is one extra X chromosome. So here are four options: absence of Y chromosome, absence of X chromosome, extra copy of an autosome, and the fourth is extra copy of an X chromosome. So option D, extra copy of an X chromosome. Okay. Now question number 13. Select the incorrect pair. First is polygenic inheritance, hemophilia. Okay. We all know that hemophilia is a sex-linked inheritance. So option A is the incorrect. But let's also know other option. Linkage Drosophila, quite common. Incomplete dominance, Anthraenium majus, white, red, pink or purple flower, pleiotropy, phenylketonuria. So question 13, option A is the incorrect option. Okay, this is the answer, polygenic inheritance, hemophilia. Hemophilia. Question number 14. According to Mendel, the nature of the unit factor that control the expression of trait, एकदम NCERT से हुबहू उतार लिया गया है. The nature of the unit factor that control the expression of the trait is stable and discrete. So option C, stable and discrete. Okay. Now question number 15. Which of the following animal exhibit male heterogamety? Option A, fruit fly, 2, fowl, 3, human, 4, honeybee. Fowl and honeybee, these two are female heterogamety example, and fruit fly, that is Drosophila, and human is the example of male heterogamety. तो इसमें ऑप्शन होगा A, 1 and 3. 1 fruit fly and 3 human. Okay. Now question number 16. The probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross. जब एक जेनेटिक क्रॉस हो रहा है दो कैरेक्टर के बीच, तो किस किस तरह का जीनोटाइप आएगा, जीनोटिपिक रेशियो फाइंड करने का तरीका क्या है या किसके मदद से किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस में तो अननोन पेरेंट्स को जाना जाता है, बैक क्रॉस भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? सी, पनेट स्क्वायर. पनेट स्क्वायर. क्वेश्चन 17. ओके, क्वेश्चन 17 इज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट दैट वुड बी प्रोड्यूस from a parent with genotype capital AA, capital BB and capital C small c. अब इसको निकालने का तरीका बताते हैं. दोनों A सेम है तो कितना गैमेट बनेगा? एक. दोनों B सेम है तो कितना गैमेट बनेगा? एक ही तरह का गैमेट बनेगा, अलग तरह का तो बनेगा नहीं. C डिफरेंट है तो दो तरह का गैमेट बनेगा ना, कैपिटल C और स्मॉल c. अब ये तीनों को अगर फ्यूज करें तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? A B C, एक A B C, दो. तो इसका आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन 17 का आंसर होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार ऑप्शन बी, दैट इज 2, क्वेश्चन 17 का। अब क्वेश्चन 18 में आओ। 18 है, सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट, स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर डाटा एनालिसिस, दिस इज 100% ट्रू। इसी डाटा एनालिसिस के चक्कर में बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड, क्लोनिंग एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए, ये पीसीआर का मामला है, ठीक है। थर्ड, आइडेंटिफाई ऑल द जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए, दैट इज कॉल्ड EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और सीक्वेंस एनोटेशन, यही दो था। लेकिन बाद में वोट किसको गिरा? टू नो ऑल द जीन फाउंड इन अ ह्यूमन। सो ऑप्शन 1 and 3 इज द करेक्ट। इसमें क्या है? सी, ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी को करेक्ट करना है। अब 19 में आइए, लेट्स कम टू द ऑप्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19। अ कोडॉन इज अ ट्रिपलेट ऑफ बेसेस was suggested by, कोडॉन ट्रिपलेट ऑफ बेसेस है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि जेनेटिक कोड कौन दिया है, कोडॉन ट्रिपलेट ऑफ बेसेस है। इसको कौन दिखाया था? याद करो, सीबीएसई बोर्ड तुम्हारे एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है इस तरह से, ए इस तरह से बनाना था। इसको कौन बनाया था? इसको बनाया था जॉर्ज गैमो। ऑप्शन होगा सी, जॉर्ज गैमो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, द करेक्ट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन ने जो डीएनए हेलिक्स बनाया था, दैट इज राइट हैंडेड, और उसका जो पिच था वो क्या था? 3.4 नैनोमीटर। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। राइट हैंडेड हेलिक्स, पिच इज 3.4 नैनोमीटर। ओके, हो गया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया क्या क्या ऑप्शन होगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, यू मस्ट टैली द आंसर शीट विद द आंसर्स। यू यूजुअली नो हाउ मच स्कोर यू कैन गेट। क्वेश्चन नंबर 21, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज नेसेसरी फॉर। tRNA charge means when tRNA is associated with a specific amino acid, that is called charging of tRNA. Binding of anticodon of tRNA to the respective codon of mRNA. इसके जस्ट बाद एमिनो एसिटाइलेशन एक टॉपिक था एनसीईआरटी में, उसमें साफ लिखा हुआ है बाइंडिंग ऑफ एंटीकोडन ऑफ tRNA टू द रिस्पेक्टिव कोडन ऑफ mRNA. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज बाइंडिंग of anticodon of tRNA to the respective codons of mRNA. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22। इट इज वेरी इजी, मेसेंसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। इन ई कोलाई वेर अलाउड टू ग्रो इन द कल्चर फॉर 80 मिनट्स बाय मेसेंसन एंड स्टॉल इन दर एक्सपेरिमेंट। द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट मीन्स प्योर, and hybrid band, hybrid density means one strand is labeled with N15 and the another strand is labeled with N14. ओके, तो 80 मिनट्स के बाद लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल का क्या परसेंटेज होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा। तो जैसे जैसे मल्टीप्लीकेशन बढ़ते जाएगा लाइट स्ट्रैंड का परसेंटेज बढ़ेगा और
हाइब्रिड स्ट्रैंड का परसेंटेज डिक्रीज होगा और ये 80 मिनट्स है. एवरी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई आफ्टर 20 मिनट्स. सो दिस इज फोर्थ जनरेशन एंड द करेक्ट आंसर इज ओके, द करेक्ट आंसर इज 87.5%. ठीक है, देखो पहले क्या था, फर्स्ट जनरेशन में 100%, सेकेंड जनरेशन में हुआ 50-50, थर्ड जनरेशन में हुआ 75-25, फोर्थ में हुआ 87.5 12.5. तो 87.5% होगा फोर्थ जनरेशन यानी 80 मिनट्स के बाद. तो आंसर होगा ए, 87.5% ऑफ light density DNA and 12.5% of hybrid density DNA. Now question number 23. Okay, a diagrammatic illustration, okay, of the process of transcription of RNA polymerase 2 in eukaryote is given below. We know that in eukaryote there are three types of RNA: RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. RNA polymerase 1 synthesize ribosomal RNA, RNA polymerase 2 synthesize messenger RNA, and RNA polymerase 3 synthesize transfer RNA. So here is choose the most appropriate statement with respect to the fate of the precursor of mRNA transcribed. That will be, there are four options. First, translation will take place once the precursor of mRNA leaves the nucleus. Okay. Second is, translation on mRNA will not take place once the precursor of mRNA leaves the nucleus. Third is, translation will take place in the nucleus. And the fourth is, the precursor of mRNA has to be processed further in the next step before translation. So option D is the correct one. That is, the precursor of mRNA has to be processed further in the next step before being translated. Before being translated. Okay. Now question 24. Is it most easy है? Identify the correct pair of codon with its corresponding pair of amino acid. UAA, UAG, UGA. ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडोन. तो स्टॉप कोडोन तो अनकोडेड है, तो यूए ल्यूसिन कैसे हो गया, यूजीए सेरिन कैसे हो गया? बी भी ऑप्शन भी गलत. सी ऑप्शन एयूजी हिस्टिडीन, एयूजी क्या है, मिथियोनिन, ये भी गलत. फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट है, ये था ट्रिपल यू इज फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. उबल हाइपोथेसिस हम लोग पढ़े थे, याद है कि ट्रिपल यू और यूयूसी ये तीनों ही किसको कोड करता है, फिनाइल एलानीन को. थर्ड बेस में जो चेंज होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 25. एसर्शन रीजन में आ रहे हैं. देखो एसर्शन रीजन में इसमें है जो सीबीएसई के द्वारा भेजा गया था उससे थोड़ा सा अलग है, जो प्रैक्टिस सेट दिया था. फर्स्ट है एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. ऑप्शन बी विल बी सिलेक्टेड इफ एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग एसर्शन. ऑप्शन सी है एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और ऑप्शन 4 है एसर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू.
पहला क्वेश्चन नंबर 25 है कि assertion है very often person suffering from STDs, that is sexually transmitted disease, do not go for timely detection and proper treatment. सही है. It sometimes is so minimum that people are not noticing it or not giving it the proper importance. Reason is absence or less significant symptom in the early stage of STD and the social stigma attached to the disease. एक संकोच भी होता है सोशल, जाने से डॉक्टर क्या बोलेगा, एक शर्म जो है इस कारण से भी होता है. तो assertion रीजन दोनों सही है और रीजन assertion को एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन होगा ए. Assertion and reason both are true and reason is explaining assertion. Question 26. Answer assertion है vasectomy is a sterilization procedure advised for female. Vasectomy sterilization procedure नहीं है फीमेल का. It is a sterilization process for male. फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी. assertion गलत है यानी रीजन सही होगा, है ना. तो क्वेश्चन 26 में होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन 27. Interstitial space outside the seminiferous tubule have blood vessels and Sertoli cell. ये गलत है. आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लेडिक सेल्स होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं होता है. तो यहां पे assertion गलत है, जबकि रीजन Sertoli cell provide nutrition to the germ cell is 100% correct. So here is also option D. ओके. अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 में भी assertion गलत था. ठीक है, assertion गलत था, तो यहां भी होगा ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. 28 में है accumulation of phenylalanine in the brain result in mental retardation in phenylketonuria. It is correct, है ना. देखिए phenylalanine का जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स है, जैसे phenylalanine lactate, phenylalanine acetate, ये सब ब्रेन में जाता है, it cause damage. बट रीजन क्या है कि द अफेक्टेड पर्सन लैक फिनाइलएलानिन. फिनाइलएलानिन लैक नहीं करता है, वो लैक करता है एंजाइम जिसका नाम है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और जिसके कारण फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 28 assertion is correct but reason is false. So option C 28. हाँ 29 है choose the correct option for the features of functional mammary gland of all female mammal from the statement below. करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड ऑफ ऑल फीमेल. फर्स्ट, ग्लैंडुलर टिश्यू विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. करेक्ट. मेमोरी लोब्स हैव 30 to 40 in नंबर. मेमोरी लोब्स, ये इनकरेक्ट है 100%. फोर्थ, थर्ड, मेमोरी डक्ट जॉइनिंग टू फॉर्म मेमोरी ट्यूब्यूल, ऐसा कुछ नहीं है. एंड फोर्थ, मेमोरी एम्प्यूला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट. दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 4 is correct. Okay. Question number 30. देखो यहां पे ये दो दिया हुआ है गाइनोसियम का, दोनों ही मल्टी कार्पेलरी है, लेकिन ये फ्यूज है तो ये सीन कार्पस, ये सब अलग अलग दिख रहा है तो ये हो गया एपोकार्पस. ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी. फर्स्ट, मल्टी कार्पेलरी syncarpus and 2 multicarpellary apocarpus. Okay. क्वेश्चन नंबर 31 है an IUD intrauterine device recommended to promote the cervix hostility to the sperm. cervix को hostile बना रहा है अगेंस्ट sperm. ये एक ही कर सकता है IUD, दैट इज हार्मोनल IUD, और हार्मोनल IUD यहां पे एक ही है LNG20, अदरवाइज कॉपर टी मल्टी लोडेड 375 एंड कॉपर 7.
these all are copper releasing IUCD. ओके, तो ऑप्शन होगा सी LNG20. ठीक है, इसका आंसर ही होगा हार्मोनल वाला. 32. आइडेंटिफाई द डिजीज विच इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये. गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमाइडियसिस. दिस A, B and D option is 100% sexually transmitted disease, but amoebiasis is a protozoan disease, so and non-sexually transmitted. C, amoebiasis. 33. The nature of meiotic division during oogenesis in a human female is. ह्यूमन फीमेल में oogenesis के दौरान जो meiotic division है उसका नेचर क्या है? इक्वल कभी नहीं होगा. मियोसिस में पेरेंट और डॉटर सेल में सेम क्रोमोसोम कभी शेयर नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नेक्स्ट, सस्पेंडेड सेल डिवीजन. दिस इज करेक्ट. ऑप्शन बी, सस्पेंडेड सेल डिवीजन है ना. मियोटिक डिवीजन जो सेकंड होता है वो तभी होता है when in the ampullary ischemic junction of the ovary of the fallopian tube the sperm fuses with the ovum, then only it complete the second maturation division, that is meiosis 2. Question 34. देखो ये डायग्राम है ना, और इस डायग्राम में x, y और z आपको खोजना है. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है. ये दोनों जो दिखाया गया है दीज आर कॉटिलेडन्स. तो x इज कॉटिलेडन है ना, तो यहां पे x कॉटिलेडन कहां पे है? ओनली ऑप्शन सी में है. तो आंसर क्या होगा? सी. x is कॉटिलेडन. ओके, y, तो y क्या होगा? रेडिकल. और उसके ऊपर में जो ये तुम्हारा z है, ये z क्या होगा? ठीक है, सॉरी, y सस्पेंसर, ये है ना सस्पेंसर सेल. 6 to सस्पेंसर एंड z रेडिकल है. z रेडिकल. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसमें है, which of the following outbreeding devices are used by majority of flowering plant to prevent inbreeding depression. इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि कंटिन्यूअस सेल्फिंग के कारण उसका जो वाइगर और वाइटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इट इज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग. तो इसमें पहला है पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, यानी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा. सेकेंड, डिफरेंट पोजिशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप पॉलन ग्रेन, नो रिलेशन. फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल अलॉन्ग विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, कभी नहीं. अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को माइनस करना है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज द बेस्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. 4B. 5 है प्रिवेंटिंग ऑफ सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हम लोग पढ़े थे, वही है. तो इसमें ऑप्शन होगा 1, 3 एंड 5. तो इसका ऑप्शन क्या है? ए. 1, 2 एंड 5 है ना. 1, 2 एंड 5. क्वेश्चन 36 क्या है? हिस्टोन प्रोटीन दैट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द न्यूक्लियोसोम इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़े हैं. हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो हिस्टोन ऑक्टेमर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है. हिस्टोन प्रोटीन क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 बेसिक एमिनो एसिड, आर्जिनिन एंड लाइसिन. तो इसमें आर्जिनिन लाइसिन कहां है? ऑप्शन सी, आर्जिनिन एंड लाइसिन. 37. ओके, ये तो बहुत इजी. पाइसम सेटिवम द फ्लावर पोजीशन may be axial or terminal. What would be the percentage of offspring with respect to axial flower position if a cross is made between AA and AA? तो देखो AA into AA, इसका पॉइंट स्क्वायर बनाओ. A स्मॉल a. ठीक है, तो कैपिटल ए किसको रिजेंबल कर रहा है? एक्सियल, एंड टर्मिनल स्मॉल एज. तो
इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द परसेंट ऑफस्प्रिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल फ्लावर। तो एक्सियल फ्लावर 2 है और टर्मिनल फ्लावर 2 है, तो ये जो तुम्हारा 37 है इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 50%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है यहां पे, इन ह्यूमन रोलिंग ऑफ टंग, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, इन अ फैमिली बोथ द पेरेंट्स हैव द ट्रेट ऑफ रोलिंग टंग बट देयर डॉटर डज नॉट शो द ट्रेट whereas the son have the trait of rolling of tongue, the genotype of the family would be, देखो फादर में भी रोलिंग ऑफ टंग है और मदर में भी रोलिंग ऑफ टंग का ट्रेट है, ठीक है, डॉटर में नहीं है, ठीक है, तो डॉटर में नहीं है मतलब डॉटर में क्या होगा, दोनों स्मॉल आर, और क्या लिखा हुआ है, सन हैव द ट्रेट, तो सन में है मतलब सन में क्या होगा, आर आर, यानी फादर और मदर दोनों हेट्रोजाइगस है ना। तो ये ऑप्शन किसमें है, चारों, ये हो गया फादर साइड, ये हो गया मदर, ये हो गया डॉटर और ये हो गया सन, तो ये ऑप्शन किसमें है, बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, along with an example। पेडिग्री एनालिसिस का केस है, सबसे पहले ये रेसेसिव नहीं होगा, क्योंकि रेसेसिव जब होता है तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव होगा तो एक जनरेशन को स्किप करेगा, तो ऑटोसोमल हटाओ। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव होगा तो मेल में दिखेगा, मेल में तो नहीं दिख रहा है बीमारी, तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव भी नहीं होगा और ऑटोसोमल रेसेसिव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी माइनस कर दो। अब ये कौन सा है, ये होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके, और ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना चाहिए, लेकिन चलो जो लिखा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, possibility of the blood group of a children in a family where the father is heterozygous for blood group A, फादर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस क्वेश्चन नंबर 40 यहां बनाते हैं ना, हेट्रोजाइगस है का मतलब हो गया फादर में है IA-IO जीन और मदर भी हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस है मतलब IB और IO होगा, ठीक है, तो यहां दोनों जीन अगर होगा IA-IO और यहां होगा IB-IO, तो इसके साथ इसका फ्यूजन होगा तो ब्लड ग्रुप होगा AB, इसके साथ इसका फ्यूजन होगा ब्लड ग्रुप होगा A, इसके साथ इसका होगा ब्लड ग्रुप होगा B, इसके साथ इसका होगा ब्लड ग्रुप होगा O। तो क्वेश्चन 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू थैलेसीमिया इन ह्यूमन इज, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB, 100% इनकरेक्ट, ठीक है, ये डेल्टा थैलेसीमिया, द जीन फॉर अल्फा थैलेसीमिया इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, दिस इज करेक्ट। सी, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। इन बीटा थैलेसीमिया the production of alpha globin chain is affected, this is also incorrect, so option C is the correct one, that is, sorry, option B is the correct one, that is beta thalassemia, the gene
the gene of alpha thalassemia. Alpha thalassemia. Thalassemia is located on chromosome number 16. Question 42. Okay, here is the region of coding strand of DNA has the following nucleotide sequence. Nucleotide sequence क्या है? TACGCCG. The sequence of base on mRNA transcribed by this would be. Okay, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रिक अपनाओ, थाइमिन की जगह यूरेसिल लिख दो, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, दैट इज 5' U A C G C C G 3'. यही इसका ट्रिक है निकालने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थाइमिन की जगह खाली यूरेसिल कर दो. क्वेश्चन नंबर 43 है, अ डीएनए मॉलिक्यूल इज. ओके, एक मिनट आवाज करो ना, वीडियो बना चाहिए ना. ठीक है, देखो, अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 160 बेस पेयर. 160 बेस पेयर. ओके, if it has 20% adenine, 20% adenine, how many cytosine bases are present? Cytosine bases are present. ठीक है, तो एडेनिन 20% है, तो एडेनिन भी तो बेसिस ही है, नाइट्रोजनस बेसिस ही है. तो 160 का 20%, 4 का शुरू किया था, A plus T is equal to G plus C is equal to 100%. एडेनिन 20% है, तो थाइमिन क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन. 20% इज इक्वल टू G plus C इज इक्वल टू 160. यहां भी 160 करो, तो G plus C इज इक्वल टू 160. ठीक है, इंटू 40/100. ओके, सॉरी, डिवाइडेड बाय 40%. इसका 40% कितना होगा? 160 का 40%. 160 का 40% 10% हो गया. ठीक है, 10% कितना होगा? 20% एडेनिन है, तो 20% थाइमिन भी तो होगा, तो 20% मीन्स 32, 64. तो G plus C इज इक्वल टू 4 माइनस हुआ 6, 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 96. ओके, लेकिन यहां पर आपसे हाउ मेनी साइटोसिन बेसिस. ओके, तो G plus C by 2 48. ओके, 48 इज द आंसर. ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 44 है, अ टेम्पलेट स्ट्रैंड इन अ बैक्टीरियल डीएनए हैज अ गिवन सीक्वेंस. देखो, AGG ट्रिपल T AAG CG. व्हाट वुड बी द आरएनए सीक्वेंस? तो आरएनए में क्या होगा? आरएनए में ए का एडेनिन थाइमिन के साथ नहीं, एडेनिन यूरेसिल के साथ, यानी ए टी के साथ नहीं करेगा, बल्कि टी के जगह यूरेसिल से करेगा. तो यहां पे कितना बेस है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि एक्स के बदले यू होगा, क्योंकि डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो बेस पेयरिंग में एडेनिन के साथ जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा यूरेसिल का होगा. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? अगर हम 3' देखें तो G C C G A U. ठीक है, अगर तुम उल्टा करके देखते हो ना 5' to 3' को, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए. ठीक है,
तो ये होगा 5' C G U U ट्रिपल A C C U 3'। क्वेश्चन 45 में है इन प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या है? इंड्यूसर है। द लैक रिप्रेसर इन द ऑपरेरन ऑफ ई कोलाई क्या करेगा? ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। एब्सेंस ऑफ एलोलैक्टोज भी ऑपरेटर के साथ बाइंड करता और स्टार्ट सिग्नल को जैम कर देता, और स्टार्ट सिग्नल को जब ये ब्लॉक कर देता तो आरएनए पॉलीमरेज इज अनेबल टू बाइंड विद द स्टार्ट सिग्नल एंड ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। ओके, तो हियर इन क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन बी is the correct option, that is cannot bind to the operator. Okay, now question number 46 बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो जब मैंने नोट्स दिया था, जिन लोगों को देखे होंगे मैं नोट्स के लास्ट में है कि मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट तो हुआ ही था NH4Cl में, ठीक है। उसके साथ साथ टेलर और कलिक्स ने 1958 में विसिया फैबा में एक्सपेरिमेंट किया था बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट, विसिया फैबा। ऑप्शन थाइमिडीन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47, और 47 क्या है देखो। द रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इज, बहुत ही इजी है, ऑप्शन डी 2'OH। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 ये तो और इजी है। तुमको जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया था उसमें से कौन सा मिसमैच है? गिवन बिलो आर द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पाइसम सेटिवम एज स्टडीड बाय मेंडल। Identify the incorrect pair of statement. A, stem height tall dwarf, correct. Seed shape round winkle. Pod color yellow green नहीं था, pod color था green yellow, ठीक है, dominant green होगा। तो यहां पे C, pod color is the incorrect one, ठीक है। pod color yellow green कर दिया है, yellow green, येलो को यहां डोमिनेंट माना गया है और ग्रीन को रेसेसिव। क्वेश्चन नंबर 49, ये एक केस बेस्ड स्टडी है ना, इसमें हम डायरेक्ट आंसर में आते हैं। फर्स्ट है द अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर इन अ ग्राफ ड्यूरिंग एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन आर। ओव्यूलेशन के समय में भी टेम्परेचर ग्राफ नीचे जा रहा है और मेंस्ट्रुअल जब कंप्लीट हो रहा है 28 डे साइकिल में तब भी नीचे जा रहा है। तो ऑप्शन सी होगा, अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लो एंड लो। ओके, 49। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज ऑफ इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ। फर्स्ट स्टेटमेंट, कपल्स हैव डिफिकल्टी इन कंसेप्शन, करेक्ट। Second option, to know the safe period for prevention of pregnancy. Safe period क्या है? 10 to 17 days of the menstrual cycle. Okay, safe period नहीं है, वो fertile period है, सॉरी। तो 10 to 17 days को छोड़ के अगर copulate किया जाए, it doesn't cause fertilization. Third is to inhibit the process of ovulation. 100% incorrect. Option D, to stimulate ovarian follicle, ये भी incorrect है। तो 1 और 2 सही है, तो इसमें होगा ऑप्शन C, that is 1 and 2, 1 and 2। अब क्वेश्चन नंबर 51 में आइए। तो 51 is the increase in the level of progesterone in maximum under the influence of LS during the last phase of the menstrual cycle, that is called secretory phase, that is luteal phase भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए secretory phase होगा, secretory phase। 51 ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन और हार्मोन्स इज और आर शोइंग रैपिड सर्च, जिसको एलएच सर्च बोलते हैं, लीडिंग टू चेंज इन ग्रासियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है कि एलएच अपने पिक में होता है, जिस कारण से ये क्या करता है
इट इंड्यूस रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, ओव्यूलेशन में, सॉरी। तो रैपिड एलएच सर्ज में कौन सा है? आंसर होगा ए एलएच। ठीक है, बहुत जगह हम देखें, ठीक है, कोई बोल रहा है यही होगा, एलएच होगा। अब क्वेश्चन 53, तुम लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे, आराम से ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 53, द ह्यूमन कॉर्पस ल्यूटम स्टार्ट रिग्रेसिंग, ठीक है, डैश डे आफ्टर ओव्यूलेशन। ह्यूमन कॉर्पस ल्यूटम रिग्रेस कब करेगा? कितने दिन के बाद ओव्यूलेशन का? फर्स्ट ऑप्शन 10 to 11 डेज, सेकेंड ऑप्शन 14 to 15 डेज। तो ओव्यूलेटरी फेज होता है मिडिल में, अगर 28 है तो 14 और 29 डेज साइकिल है तो 15। तो यहां पे ऑप्शन करेक्ट है बी, 14 to 15 डेज। नेक्स्ट, as per the data plotted in the graph, in which period of the menstrual cycle is the chance of fertilization very high in human female? अभी हम बोले 10 to 17 day of the menstrual cycle is called fertile period. So option B, 10 to 17th day. ओके, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। अब आइए 55, 6 क्वेश्चन और है। देखो, यहां पे हम सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55 में क्या लिखा हुआ है कि अ प्लांट ब्रीडर कॉस्ट अ प्योर ब्रीड टॉल प्लांट हैविंग व्हाइट फ्लावर विथ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट हैविंग ब्लू फ्लावर। और F1 का प्रोजेनी क्या आया? ब्लू फ्लावर, यानी ब्लू तुम्हारा डोमिनेंट है और व्हाइट तुम्हारा रेसेसिव है। तो डबल बी स्मॉल डब्लू, बी डब्लू, ये हो गया बी स्मॉल डब्लू, ये हो गया ब्लू। टोटल कितना आया? टोटल है 202 एंड फाउंड दैट दे ऑल आर ब्लू अपॉन सेल्फिंग। जब F1 किया गया, जब ये हो गया F1, अब F2 में क्या होगा? सेल्फिंग BW इंटू BW। तो इसको सेल्फिंग करो, BW BW, इसको सेल्फिंग करो, इसको सेल्फिंग करो। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? B इज डोमिनेंट, तो ये तीनों हो जाएगा ब्लू और ये एक हो जाएगा व्हाइट, यानी ये होगा 3 और ये हो गया 1 का रेशियो में फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो बोला गया टोटल प्रोजेनी F2 में कितना मिला? 2160। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ऑफ दिस आर लाइकली टू बी शॉर्ट हैविंग ब्लू फ्लावर? इसमें से ब्लू फ्लावर कितना है? ठीक है, तो ब्लू फ्लावर कितना है? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दिस आर लाइकली टू बी शॉर्ट हैविंग ब्लू फ्लावर? इसमें से कितना ब्लू फ्लावर कम है? ठीक है ना, तो कॉमन एग्जांपल है, अगर इसको 3 और 1 4 भाग है, इसको 4 भाग में बांटो। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 0, यानी 3 भाग, 3 5 जा तो 540, 3 भाग, इसका 4 इंटू 540 करेंगे तब ना ये आएगा। तो यहां पे क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ऑफ दिस आर लाइकली टू बी शॉर्ट हैविंग ब्लू फ्लावर? कितने फ्लावर में ब्लू फ्लावर नहीं होगा आउट ऑफ 2160? तो आंसर है 540, और 540 क्या है? यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, यहां पे क्या है? खाली एक वाई क्रोमोसोम मिसिंग है। यहां पे टर्नर डाउन तो 21 ट्राइसोमी है, 21 में ट्राइसोमी है नहीं होगा, तो यहां पे टर्नर सिंड्रोम होगा
और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम का होता है 44 प्लस x0। तो यहां पे टर्नर सिंड्रोम, इसमें स्टेराइल रूडिमेंट्री ओवरी होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर, तो ऑप्शन ए होगा। टर्नर सिंड्रोम्स स्टेराइल ओवरी शॉर्ट स्टैचर, शॉर्ट स्टैचर, ठीक है। दूसरा भी इसी में है लेकिन उसमें स्मॉल राउंड हेड, ये तो डाउन सिंड्रोम का है, तो ये होगा नहीं, ए ही करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाइए 57 में, तो 57 में एनसीईआरटी का ही डायग्राम उठा दिया है। इसमें क्या ऑप्शन था, इसमें पेरेंटल टाइप ज्यादा होगा मैक्सिमम और रिकॉम्बिनेंट टाइप मिनिमम होगा। यार पेरेंटल टाइप ज्यादा है मतलब लिंकेज हाई, तो इसमें ऑप्शन देखो, पेरेंटल टाइप 1.3 गलत, रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3 सही, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज लो कैसे हुआ, रिकॉम्बिनेंट कम है मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज तो हाई है, तो बी भी नहीं होगा, तो थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन सी, दैट इज पेरेंटल टाइप 98.7%, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज हाई, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज हाई 58 है। देखो इसमें ए स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस डाई है, सही है। आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया, माइस मरा नहीं, 2 भी सही है। ए स्ट्रेन हिट किल माइस में डाला गया, माइस मर गया लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 गलत। ऑप्शन 4 में है हिट किल्ड आस्ट्रेन और एस्ट्रेन माइस में डाला गया तब भी माइस नहीं मरा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन 3 एंड 4 यही दोनों गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन 3 एंड 4 सी होगा, ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो इसमें 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही इजी है। इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो सबसे पहले 3C और D को माइनस कर दो, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड लीडिंग और एक स्ट्रैंड लैगिंग होता है, एक कंटिन्यूअस होगा और एक डिसकंटिन्यूअस होगा, तो C भी गलत है, दोनों में डिसकंटिन्यूअस है, और D भी गलत है, दोनों में कंटिन्यूअस है। ऑप्शन ए और बी के बीच लड़ाई, तो बी सही होगा कि ए सही होगा क्योंकि 3' to 5' है और इसी में 5' to 3' पोलैरिटी होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसमें देखो इस तरह से बनाया गया है, ये एनसीईआरटी में एकदम क्लीन वे में डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 बहुत ही इजी है। 1 क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 क्या है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। 3 क्या है, 5' एंड ऑफ एमआरएनए, क्योंकि ये 3' है तो ये 5' होगा। और 4th क्या है, 4th है ट्रांसफर आरएनए, देखो टीआरएनए है, तो यहां पे तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। 3 है 5' एंड ऑफ एमआरएनए, और 4th है टीआरएनए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेट 057/1/4। और मैंने जितने भी स्कूल से पता किया धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर यही सेट है,
तो इस सेट का ये प्रॉपर आंसर है, आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा हाउ मच स्कोरिंग यू हैव स्कोर्ड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और सॉरी टाइम नहीं मिलने के कारण थोड़ा रात हो गया आपको आंसर की देने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।